میں اپنے طور پر پوری کوشش کروں گا، ساتھ میں آپ حضرات کا بھی اگر تعاون رہے تو یہ غیر رسمی نشست ہو سکتی ہے، ورنہ بھی نہیں کیا ہے، اوپن ہے اسٹیج سے. تو میں چاہوں گا اس خالی اسٹیج کو سب سے پہلے زینت بخشنے کے لیے دعوت دوں ہماری آج کی مہمان، جن کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہی ہے اور جن کے اعزاز میں آج کی شام میں نے کوشش کی ہے کہ سجاؤں. میری مراد محترمہ عائشہ مقصود صاحبہ سے ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں چاہوں گا کہ اسٹیج پر ہمارے ایک اور مہمان ہیں، مہمان مقرر بھی ہیں. امریکی قونصل خانہ حیدرآباد میں آپ جڑے ہوئے ہیں. باسط صاحب، آپ کا ہم اسٹیج پر خیر مقدم کرتے ہیں، آپ اسٹیج پر تشریف رکھیے گا. علی قریشی صاحب کے ساتھ کیونکہ کام کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، تو یہ جو نیا فورم جس کی آج یہ پہلی نشست ہے الف، اس فورم کے لیے بھی ہم اعجاز صاحب سے تعاون کے طلبگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اعجاز صاحب کے ساتھ کام کریں. تو میں چاہوں گا کہ اعجاز صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ترتیب ابتدائی کلمات کو پیش کریں. جناب اعجاز علی قریشی صاحب. السلام علیکم. حاضرین اکرام، میں اعجاز علی قریشی آزاد لٹریری فورم سے آج کے اجلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں. الف آزاد لٹریری فورم کا یہ پہلا باضابطہ پروگرام ہے. اس فورم کے سرپرست اعلیٰ علی جناب محمد مصطفیٰ علی سروری صاحب ہے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس فورم کے قیام کا مقصد ہم سب ہم خیال محبان اردو کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی یہ کوشش ہے اور اردو زبان ادب کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے. جس طرح سے اور جس انداز میں شہر حیدرآباد کا ادبی اور لسانی منظر نامہ ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم الگ الگ خانوں اور گروہ بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں. گروہ بندیوں سے بالاتر ہو کر کچھ ایک مشترکہ نکات پر ٹھوس کام کرنے کا لاہ عمل تیار کرنا ہے. مشترکہ نکات میں اردو زبان کی ترقی و ترویج اور ایک اہم بنیادی نقطہ ہے. محترمہ عائشہ مقصود صاحبہ کے نام آج کے اس اجلاس سے ہمارے فورم کی، یعنی آپ کے اور ہمارے فورم کی شروعات ہے. آج کے اس پروگرام میں حاضرین کی دلچسپی کو دیکھ کر مجھ کو توقع ہو چلی ہے کہ ہم سب حضرات کا تعاون اس طرح شامل رہے گا. انشاءاللہ ہم الف کے بینر تلے ہر مہینے کچھ نہ کچھ پروگرام اسی طریقے سے یہاں پر پیش کریں گے، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کا اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اردو زندہ باد، اردو پائندہ باد. شکریہ. خدا حافظ. میں جو ہے نہ صرف حیدرآباد تلنگانہ بلکہ ہندوستان بھر سے جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے محبان اردو جو ہے وہ اس میں بنایا جائے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے الف کے پلیٹ فارم پھلے اور آگے بڑھے. اس کے علاوہ جو ہے میں جہاں تک اردو کا تعلق ہے، خاص طور پہ الفاظ کو دہراتے ہیں تو جو ہے سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نے بولتا قاعدہ بھی وہاں پر منگوایا یہاں سے، اور فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کیا وہاں پر، اور کوشش یہ کر رہے تھے کہ بھائی یہاں سے اساتذہ کے تھرو جو ہے زوم میٹنگز وغیرہ سے جو ہے کچھ سیکھا جائے. لیکن ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. لیکن آبویسلی ہم چاہیں گے جو ہے بہت ہی گہما گہمی والا جو ماحول دوبارہ جو ہے حیدرآباد میں پیدا ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو میں اب مصطفیٰ علی سروری صاحب سے معذرت کے ساتھ خواہش کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ اس میں شامل کر لیں. اور پروگرام میں شرکت کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ اس کے قیام کے کیا اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی جاننا چاہتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ محترمہ عائشہ مقصود صاحبہ کی شخصیت کو جاننے کا شروع سے اشتیاق رہا. اسی شوق میں یہاں حاضر ہوا. تو
आसिया साहिबा जो जिनका मजमून यहाँ पढ़ा गया, उससे बहुत सारे इंकशाफात हुए। और भी ऐसी कई शख्सियतें हैं जो हैदराबाद से ताल्लुक़ है और जाके मुख्तलिफ ममालिक में वो उन्होंने अपना वतन बनाया और उर्दू की खिदमत करती रही हैं, जिसमें हसन चिश्ती है, बहुत सारे लोग हैं। उर्दू की जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल करने की काविशें कोशिशें करेंगे हज़रात, क्योंकि हम उर्दू वाले अभी उर्दू की तालीम के बारे में एक बात आई तो उर्दू वाले हमेशा, क्योंकि उनके यहाँ एक ऐसा तस्वुर आ गया कि वो लोग क्या समझते हैं कि अंग्रेज़ी अब मुलाजिमत की ज़बान हो गई है, लिहाजा पूरा का पूरा रेला उर्दू का उस तरफ चला गया है, अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ। लेकिन मैं कहता हूँ कि उर्दू मीडियम से, मादरी ज़बान से जो तालीम हासिल करते हैं उनमें सलाहियत, काबिलियत पैदा होती है। लेकिन जितने भी आप स्टेज पे देख रहे हैं ये सब उर्दू मीडियम के जो स्टार हैं, ये सितारे हैं और उर्दू का काम व काज ये कर रहे हैं। खासतौर पर मैं मुस्तफा अली समरी साहब को देखता हूँ कि हमेशा बहुत एक्टिव हैं। मुझे 90 से 2000 के तक का ज़माना बार बार बोलते थे, क्योंकि उस वक्त के लड़के हो या उस वक्त के जितने नाम अगर मैं गिनाऊं तो सब के सब आज भी उर्दू की खिदमत में लगे। जैसे कि हर शय को मुसलसल जुम्बिश है, राहत का जहां में नाम नहीं। हर शय को मुसलसल जुम्बिश है, राहत का जहां में नाम नहीं। इस आलम सही और काविश में इंसान के लिए आराम नहीं। हर मोम को धुने शमा बने, मुस्तरे पिघल जाने को, हर संग का सीना चलता है पारस में बदल जाने को। तो हमारा दौर ऐसा था कि मालूम आयशा मकसूद साहिबा से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई। हाँ, हमारा जो महफिल ख़वातीन का ग्रुप है उसमें कुछ महीनों पहले शायद आयशा मकसूद साहिबा को शामिल किया गया था। तो उस ग्रुप के ज़रिए हम लोगों की मुलाकात है, जिसमें जो है मुझे आपके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली और कुछ तस्वीर वगैरह भी देखने को मिले थे। तो इस तरह से गायबाना तारुफ आपसे है। लेकिन आज ही जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सरवरी साहब से भी कहा और किसी से भी कहा, आपके फ्रेंड्स मौजूद थे, तो मैंने कहा कि आज यहाँ आने का मेरा मकसद यही है कि मैं आयशा मकसूद साहिबा को, उनकी शख्सियत को और उनके कारनामों को जो अपने वतन से दूर रहकर अमेरिका में अंजाम दे रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानूं, और मैं जानने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। ये वो स्टेज पर बैठे हैं और हमारे बाजू में एक बैठे हैं नौजवान सहाफ़ी कहूँ या क्या कहूँ नहीं मालूम, बासित मलिक साहब। मुंसिफ में थे आप, तो ऑल इंडिया रेडियो में थे आप, टीवी 9 में थे आप, रेडियो में थे आप, टाइम्स ऑफ इंडिया में थे आप। मेरा बहुत लंबी फहरिस्त है, सब जगह आप थे और आज आप हमारे साथ हैं। खासतौर पर बासित पहले फर्द हैं जिन्होंने कहा कि भाई यस, आयशा मकसूद के हवाले से आप जो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं बिल्कुल करिए, मैं आपके साथ हूँ। आपका शुक्रिया बासित, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इज़हार ख्याल करें। जितने सीनियर लोग बैठे हैं उनके सामने बात करने की हिम्मत तो होती नहीं, पहले तो बात करने उतना आता भी नहीं। ये सरवरी साहब की गैर मामूली मुझ पर एतमाद जिसको बोल सकते हैं, या मैं पहली बार हाँ बोला तो उन्होंने मेरे को इस पर इस पे लगा दिए और यहाँ बिठा दिए। तो आई मे बी विक्टिम ऑफ एसोसिएशन, लेकिन इट्स अ ग्रेट जॉब। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत बेहतरीन काम है। हर किसी को इस तरह के काम में आगे आना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की प्लेटफॉर्म्स की फिर से रिवाइव हो रहे हैं, फिर से काम कर रहे हैं। तो और ख़ास तौर पे शख्सियत आयशा मकसूद जैसी हो, जिनकी बेलौस खिदमत हैं, जिनमें से मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं कहूँगा, कई बल्कि उर्दू से हटके बियॉन्ड उर्दू, जिसको आप बोल सकते हैं रोज़गार, जॉब्स, एजुकेशन, काउंसलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ों से वो उनकी वाबस्तगी रही है। और उनके जो एहसानात कह सकते हैं या फिर आपके खिदमत कह सकते हैं, उनमें से एक मुस्तफ़ीद में से मैं भी हूँ। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो आयशा मकसूद ही ने रेफ़र किया था मुंसिफ में।
मैं हूँ आफाक है और हमारे और भी साथियाँ थे जिनको इन्होंने बेड़ा तो आपको ही उठाना होगा, खिदमत भले हिम्मत के लिए। उर्दू आप पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उर्दू के लोगों से मिलेंगे, मिलाएंगे, उनकी तरक्की और तरवीज करेंगे, तभी जाके होगा। भले खिदमत ना कहें, इसको नौकरी कह लें। हम नौकरी करते हैं, उर्दू की खिदमत नहीं करते हैं। तो माशाल्लाह ये लिटरेरी फोरम, आज़ाद लिटरेरी फोरम है। यहाँ सिर्फ उर्दू तक ही महदूद ना हो, बल्कि अवामुन्नास की, इंसानों की तरक्की और फलाह के काम इसमें सोचे जाएं। मीडियम उर्दू हो या ज़बान उर्दू हो, तरीके तक ही हम लोग महदूद नहीं रहे हैं। या मैं खुद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, उर्दू यूनिवर्सिटी से काम करता हूँ, लेकिन मेरा जहन या मेरा जज्बा जो है सिर्फ उर्दू तक महदूद नहीं है। यकीनन उर्दू में मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन सिर्फ उर्दू एक मीडियम नहीं है जहाँ से इंसान की तरक्की हो या मुसलमानों की तरक्की हो या आगे बढ़े। तो दूसरी ज़बानों को भी साथ लेके चलें। बाइलिंगुअल ज़माना है, सिर्फ उर्दू तक ही महदूद न रहें। इस ज़बान के साथ साथ उसको चलें। दूसरे की ज़बान अगर आपको आती हो तो ये ज़बान से आप उसको तारुफ करवा सकते हैं, वरना अपनी ज़बान में हम ही बोलते रहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। जैसे आफाक साहब जाकर वहाँ काम कर रहे हैं कि अब्बा जान उर्दू के बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर रह चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अब वहाँ जाके किसी को समझाना है तो उर्दू में नहीं समझाएंगे। आयशा साहिबा अगर किसी को सियाटिल में कोई अदबी अंजुमन चला रही हैं तो वहाँ पर जिसको इंट्रोड्यूस करना है तो वहाँ पर उर्दू बोलेंगे तो वो कम समझेंगे, उर्दू वाले ही समझेंगे जो समझेंगे। तो उर्दू की जड़ें मजबूत होना है और उर्दू की जड़ें और आगे तक जाना है, तो दूसरी ज़बान को भी साथ लेते हुए उसमें हम जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। वालिदैन और नौजवान बच्चे पर आज की शाम आयशा मकसूद साहिबा के नाम, तो सबसे पहले शख्सियत के ताल्लुक से ही कुछ बात होना चाहिए। सबसे पहले मैं सरवरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हें पता चला कि आयशा मकसूद हैदराबाद आए हुई हैं, तो उन्होंने अपने ज़माने तालिब इल्मी की यादों को फिर से दोहराने और उस हवाले से कुछ तामीरी काम करने के लिए अलिफ के नाम से आज़ाद लिटरेरी फोरम कायम किया। Beloved mom, Safia, my khala, Sabia, my aunt, Safia, my New Progressive High School के मेरे students, my cousin Ali, मेरे साहबजादे सिद्दीक, मेरी बेटी कुलसूम, my sister उज़्मा, अपी, my दी और मेरे पड़ोसी जो मुंसिफ अखबार देख के यहाँ पर आए हैं, और अबरार भाई, भाई तुम लोग सब, अकबर भाई, तुम लोग के चेहरे इतने बदल गए कि मुझे नाम याद नहीं है। इवन आफाक मतीन को भी पहचान नहीं पाई। पीछे आसिम, यूसुफ भाई एंड माय बिलवर्ड सन उस्मान, क्या है ये मीडिया प्लस के बानी फाजिल हुसैन परवेज साहब और डायस पे नशीन, उस ज़माने के मेरे साथी, अब जो कि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो कोई प्रिंसिपल हो गए, तो कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार डायरेक्टर, कोई अलिफ के प्रेसिडेंट, माशाल्लाह। और मैं जो कुछ नहीं करता, बखौल अकबर भाई के, जो कुछ नहीं करता वो बहुत कुछ करता है। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ और जिस मुकाम पर पहुँची हूँ, इसका क्रेडिट को उर्दू में क्या बोलते बताइएगा मुझे। सहरा। और ये लीजिए श्रेय हिंदी में होता है, उर्दू का लफ्ज़ बताइए मुझे। गूगल में ढूंढे तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ मिला है, सहरा, और कोई लफ्ज़ नहीं है। क्रेडिट, हम क्रेडिट में इतने खो चुके हैं कि उर्दू का लफ्ज़ ढूंढना मुश्किल है। सहरा, मैं जिस मुकाम पर हूँ इसका सहरा मैं अपने वालिदीन और असातिज़ा ग्रामी को देना चाहूँगी। उर्दू की जो शुमा मेरे असातिज़ा ने मुझे पकड़ाई थी, उसको हैदराबाद दक्कन से जो मैं 99 में लेके चली थी, तो वो अमेरिका तक पहुँच के मैंने उसे बुझने नहीं दिया। वो अतरदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू, सलीक़े से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में उर्दू घोल सकते हैं। कुछ लोग अभी बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। अगर मेरे यहाँ
कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उर्दू की शान में कोई शेर बोलना चाहे तो प्लीज। उर्दू की शान में कोई शेर नहीं है आपके? वक्त की खैर है वो। नहीं, वक्त की खैर नहीं है, इसके बाद इशाइया नहीं है, स्नैक्स है। कोई बोला तो पूरा बोल लेके जाइए प्राइस। बोलिए। तो एक बंदा एक प्राइज लेके जाए तो मुझे ज्यादा सुकून होगा। ये उर्दू यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि बजट है सब दे दिया जाए। जी जी बोलिए। मेरा अपना ही एक शेर है, चूँकि मैंने बरतानिया में और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारा है, हर दूसरा शख्स वहाँ उर्दू बोलता है। तो मैं शेर हुआ फिर उसी से गज़ल हुई, उसी से एक शेर सुना रहा हूँ कि तू चंद हल्कों में बंद करके खुशी के मारे उछल रहा है मियाँ, हमारी ज़बान का सिक्का तो सारे आलम में चल रहा है। कॉलेज, फिर इसके बाद 97 से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA, फिर MPhil, फिर मिले इक़रा, अवाम, ऑल इंडिया रेडियो और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। हर एक का एक एक नुमाइंदा मौजूद है, हर उसका एक एक नुमाइंदा, सिर्फ एक रेडी कॉलेज का नुमाइंदा नहीं है। निज़ाम कॉलेज हर जगह से माशाल्लाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सफ़र किया। जब 98 में पॉलिटिक्स में इंटर करी तो अम्मा को ऐसा लगा कि बस अब इनकी शादी हो जानी चाहिए। तो 99 जनवरी में मेरा तबादला, मेरा पार्सल अमेरिका हुआ। मैंने अपने शौहर रियाज अहमद खान को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिलवाया, पॉलिटिक्स में उनको लेकर आई हूँ। राइट नाउ ही इज़ अ मकलटियो सिटी काउंसिल मेंबर, पोजीशन 5। 3 साल तक 3 दफ़ा लगातार लड़ते रहे, 3 दफ़ा हारे, 3rd इज़ अ चार्म, तीसरी दफ़ा रियाज खान जीते हैं। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे दोस्त, माँ बाप, सबका हाथ होता है। रियाज खान का सबसे बड़ा हाथ है। रियाज खान इज़ एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, बोइंग में नौकरी करते हैं, लेकिन साथ में मैं और रियाज इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से सुम्मा इंशाल्लाह मकलटियों में जहाँ मस्जिद नहीं है, मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो चुका है। अगले चंद सालों में इंशाल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक के नमाज़ें पढ़ेंगे। कौन सी नमाज होती है जो रमज़ानुल मुबारक में इशा के बाद ख़ास पढ़ते हैं हम? बिल्कुल सही जवाब, तरावी। अस्सलाम वालेकुम। इसके आप 65 सवाल तकरीबन मेरे बच्चों से पूछ लिए, उस्मान से लेके कुलसुम इज़ डूइंग हर लॉ, बेटा इंशाल्लाह अभी ग्रेजुएट हुआ है, मेडिसिन में जाएगा। इनसे पूछ लीजिए आप, ये लोग बोलेंगे। शमा तो मैंने उर्दू की जलाए इसलिए रखी है कि इसका मकसद है कि ये उर्दू की जो पाकीज़गी है वो दाखिल हो। कोशिश जारी है। हमारे सियाटल में उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक शोबा है, शोबा उर्दू, प्रोफेसर जमील अहमद, उनके साथ मिलकर बच्चों को हर समर उर्दू पढ़ाने का काम भी हम अंजाम देते हैं। कोशिश है हमारी कि साथ साथ उर्दू भी चले। उस्मान को सवाल उर्दू में पूछो, जवाब अंग्रेज़ी में आएगा। सिद्दीक और कुलसुम से पूछो, बड़े बेहतरीन तरीके से उर्दू में आएगा। और सिद्दीक चूँकि दादा नज़ीर अहमद ख़ान साहब के पोते हैं तो थोड़ी बहुत शायरी कर लेते हैं। जी अभी फ़िलवक्त उनको याद नहीं होगा, लेकिन उनकी वीडियो क्लिप है मेरे पास, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। वो क्या था वो शेर? हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ, खबरों से पूछ, असली जमींदार मैं ही हूँ। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी से मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूँ। बस इसी के साथ, इसी कलमात के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जनाब सरवरी साहब का और डायस पे बैठे तमाम लोगों का। मेरी बेटी को आप यहाँ पर आ जाइए, और जो रफिया रोशिद साहब हैं वो ये आपको जो है हाँ वाला भी आपके बच्चों को बुलाओ। दीदी कम, हाँ फैमिली मेंबर्स दीदी आइए। अप्पी, जो अप्पी बोले जो दीदी बोले, आइए। आप आ सकते हैं अप्पी आओ ना, दीदी आओ ना।
एक मिनट आप जिस काज के लिए अमेरिका में जो उर्दू के लिए जो काम कर रहे हैं, हैदराबाद में आके उर्दू की आप कैसा महसूस हुआ? ये आप जो प्रोग्राम हुआ, अब इससे आप क्या नई सीख लिए या नया जज्बा, कितना जज्बा पैदा हुआ कि मज़ीद उर्दू के लिए काम किया? पुरानी यादें जो थी ना वो वापस आई है, तो नेचुरल थिंग है जब आपको पुरानी यादें वापस आती है तो एक किस्म का अलग से फिर से दोबारा जोश आता है। तो इंशाल्लाह यहाँ से जाके इंशाल्लाह थोड़े अदबी नशिस्तें और बैतबाजी के मुकाबले भूल गई थी, वो बैतबाजी के मुकाबले इस किस्म की कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कराने की कोशिश करूँगी नौजवान नस्ल और पुराने लोग इनके बीच में। तो देखते हैं इंशाल्लाह।